Hello students, today we will continue the psychometric relations as discussed in last video. So in the continuity, the bypass factor of the heating and cooling coil. As I discussed that sensible heating and sensible cooling, and how this sensible heating and the sensible cooling is possible. तो मैंने वहाँ भी आपसे डिस्कस किया था कि सेंसिबल हीटिंग के लिए हम आपकी जो एयर है उसको हीटिंग कॉइल से पास कराते हैं और इससे ये टेम्परेचर गेन करता है और ये एग्जिट हो जाता है, तो ये सेंसिबल कूलिंग होता है। यहाँ पर आपका स्टीम फ्लो होता है, स्टीम आउट होता है, कोई भी कूलिंग फ्लूइड ओके इन द सॉरी any heating fluid is like the steam. In the cooling of the air, sensible cooling of the air, we pass the air from the cooling coil in which the refrigerant or coolant is flow, and the air give its this refrigerant observe the heat of this air flowing air, and the air will exit at lower temperature. So this is the process of the heating, sensible heating and sensible cooling, as I discussed in last video. Today I just recall you. Okay. Now the bypass factor of the heating and bypass factor of the cooling coil. If यहाँ पर जो आपका सिस्टम लगा हुआ है इस तरह से है कि ये आपकी जो हीटिंग और कूलिंग कॉयल है, अगर हीटिंग कॉयल है तो इसमें स्टीम फ्लो हो रहा होगा, हीटिंग फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा। अगर ये कूलिंग कॉयल है तो इसमें रेफ्रिजरेंट या कूलेंट फ्लो हो रहा होगा। ओके, तो क्या है कि सारी जब एयर इसमें पास हो रही है, ये हर जगह से एयर पास हो रही है पूरी एपरेटस में, तो पूरी की पूरी एयर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में इस कॉयल के नहीं आती है। Some part of the air will come into the contact of this coil and the remaining part will bypass to this coil. Okay, so that remaining part will remain at the same temperature at its exit, and the some part which will in contact with this cooling coil exchange its heat with this cooling coil. Okay, it take the heat from the cooling apparatus, cooling coil, okay, and increase its temperature, and after that the bypass air will come in contact to this and mixture of the air will exit, and its temperature is TD2 will be more than the air's entry temperature TD1, but its TD2 is less than this coil temperature TD3. कॉयल टेम्परेचर TD3 है आपका, एग्जिट एंट्री टेम्परेचर TD1 है और एग्जिट टेम्परेचर TD2 है। तो सेंसिबल हीटिंग में TD3 सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद TD2, ओके, TD2 इज़ ग्रेटर दैन TD1। जो एयर एग्जिट हो रही है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो एयर इंटर हो रही है उसका टेम्परेचर कम होगा, लेकिन वो कूलिंग कॉइल के इक्वल नहीं होगा। उसका रीज़न यही है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में पूरी की पूरी एयर नहीं आ रही है, तो कुछ एयर बाईपास हो रही है। तो टुडे वी विल कैलकुलेट दैट बाईपास फैक्टर, okay, that bypass factor in terms of the mass, or this is the unitless. Okay, if 1 kg of the air will enter into the apparatus, if x kg of the air will be bypassed, so the 1 minus x kg will be come into the contact of this coil. Okay, and after that mixing of that x kg plus 1 minus x kg will exit. So the 1 kg will enter, 1 kg will exit, okay, and the x kg will be bypass and 1 minus x kg will come into the heating coil. So this is in closed apparatus process. So we all know that 1 kg air will be enter and 1 kg of the air will exit, and its temperature will change TD1 to TD2. Okay, only this. So if we apply the enthalpy balancing equation from here and here, if
here CPM we use the humid specific capacity, as we use this many times in last videos. Okay, सो इफ़ एक्स मास का टेम्परेचर वही रहा तो इसकी एंथैल्पी चेंज नहीं हुई, तो इसकी एंथैल्पी क्या होगी, एम सी डेल्टा टी, एम क्या है एक्स, सी पी एम द कैपेसिटी टेम्परेचर टी डी वन माइनस एक्स के जी कॉन्टैक्ट में आया और इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा टी डी थ्री, तो दैट इज़ द टी डी थ्री। ओके, इसकी एंथैल्पी और इसकी एंथैल्पी दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो रहे हैं 1 के जी सी पी एम और कितने टेम्परेचर पे हो रहे हैं टी डी टू। ओके, सो इफ़ अप्लाई दिस इक्वेशन एक्स टाइम ऑफ सी पी एम टी डी वन माइनस, आप यहाँ देख सकते हैं, ओके लाइक दिस, एक्स टाइम ऑफ सी पी एम टी डी वन माइनस एक्स टाइम सी पी एम टी डी थ्री इज इक्वल टू सी पी एम टी डी टू। यहाँ से अगर हम x कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बिकम इन टी डी टू माइनस टी डी थ्री, टी डी वन माइनस टी डी थ्री, बिकॉज टी डी थ्री इज ग्रेटर दैन टी डी टू इज ग्रेटर दैन टी डी वन। सो तो रिमेन द डिफरेंस पॉजिटिव, सो वी हेयर take the minus common, so TD3 minus TD2 upon TD3 minus TD1. This is the bypass factor of heating coil. Similarly, the bypass factor of the cooling coil is, this is the heating coil and this is the cooling coil. Cooling coil में क्या होगा, आपका जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा TD1, उसके बाद TD2 और सबसे कम होगा TD3. ओके, so TD2 minus TD3 and TD1 minus TD3 this. ओके, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, ये TD3 टेम्परेचर है, अगर हम इसको इस तरह से बनाएं, दिस इज द कांस्टेंट लाइन TD3, LMTD हमने आपने पढ़ा होगा उसमें हीट एंड मास ट्रांसफ़र में, और यहाँ से जो टेम्परेचर हो रहा है वो इतना हो रहा है, एक्सचेंजर आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर ये TD1 पे इंटर हो रहा है, TD2 पे एग्जिट हो रहा है, और इसका टेम्परेचर TD3 एक्चुअली कांस्टेंट है, क्योंकि इतना टेम्परेचर है इसका कि उसमें चेंज कुछ होगा नहीं, ये हम अज्यूम करेंगे। तो आपका क्या होगा बाईपास फैक्टर विल बी TD3 माइनस TD2 दिस माइनस दिस अपॉन दिस, डिफरेंस दिस TD3 माइनस TD1. ओके, so this is the bypass factor of the heating and cooling coil, and you remember the formula आपको याद करने का यही तरीका है, तीन टेम्परेचर हैं TD3, TD1, TD2, और आपको ऊपर डिफरेंस लेना है पॉजिटिव, नीचे भी डिफरेंस लेना है पॉजिटिव, TD3 दोनों में आएगा, TD3 विल कम, तो TD3 माइनस TD2 अपॉन TD3 माइनस TD1. Exit upon entry. Efficiency is 1 minus bypass factor. Okay, this is the efficiency. जितना bypass factor कम होगा उतनी efficiency आपकी ज़्यादा होगी. Okay, now एक numerical problem देख लेते हैं. In a heating application, moist air enters a steam heating coil at 10 degree centigrade, 50% RH का मतलब है, इसको इस तरफ देख लीजिए आप, इन ए हीटिंग एप्लीकेशन मॉइस्ट एयर इंटर्स ए स्टीम हीटिंग coil at 10 degrees centigrade and 50% RH. RH का मतलब है relative humidity, and leaves at 30 degrees centigrade. Determine the sensible heat transfer if the mass flow rate of air is 100 kg of dry air per second, mass flow rate. Also determine the steam mass flow rate if steam enters saturated at 100 degree centigrade and condensate leaves at 80 degree centigrade. क्वेश्चन है क्या, एक्चुअली आपको गिवन है, एक तो पहले ये देख लीजिए साइकोमेट्रिक चार्ट पे आपको क्या क्या गिवन है, जो एयर इंटर हो रही है उसकी जो कंडीशन है वो क्या गिवन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो इंटर हो रहा है दैट इज TD1 आपको गिवन है
10 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंसिबल हीटिंग कॉयल है ये, इन्हें हीटिंग एप्लीकेशन है, मतलब सेंसिबल हीटिंग हो रही है। सेंसिबल हीटिंग आप साइकोमेट्रिक चार्ट पे अच्छी तरह से ड्रॉ करना आता है आपको। दिस इज द सेंसिबल हीटिंग, ये इनिशियल पॉइंट होगा और ये फाइनल पॉइंट होगा, यानी कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और अगर दो कंडीशंस आपको दे रखी हैं किसी भी पॉइंट पे एयर की, तो आप साइकोमेट्रिक चार्ट पे उस पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। दो कंडीशन क्या है, दो कंडीशन देने का मतलब कोई भी दो कंडीशन दे रखी हैं, आपको दो चीज़ें चाहिए कि 2 डायमेंशन उसमें पॉइंट को मार्क करने के लिए। ओके, तो ये 2 डायमेंशन ही है, तो आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है एक, तो दूसरी दे रखा है 50% RH के कर्व ऐसे होंगे साइकोमेट्रिक चार्ट लाइक दिस। यहाँ पर आप इस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, और कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, 50%, जहाँ पर भी RH लिखा होगा इस पर 40% लिखा है सपोज, यहाँ पर 50% लिखा है, यहाँ पर 60% लिखा है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में जब आप जाएंगे वहाँ पर मार्क करेंगे, देन यू हैव टू मार्क ड्रॉ द वर्टिकल लाइन फ्रॉम 10 डिग्री। यहाँ पर ड्राइवर टेम्परेचर होगा आपका, तो यहाँ से आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे अप टू द RH 50% कर्व। ये इस तरह से कर्व होंगे, ये वर्टिकल लाइन इस 50% को जहाँ मीट करेगी, दैट इज़ द पॉइंट 1। ये 50% इसका RH। ओके, now if you know very well that in the sensible heating and sensible cooling the specific humidity remain constant, so we draw the horizontal line। अब हमने पॉइंट 1 मार्क कर लिया, पॉइंट 1 हमें साइकोमेट्रिक चार्ट पे पता चल गया। अब 1 से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एक, और कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट पता है हमें जो एयर लीव कर रही है वो कितने पे है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एंट्री पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, जो लीव कर रहा है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो इस 30 डिग्री से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, जहाँ से ये वर्टिकल लाइन मीट करेगी। तो ये हमें दोनों पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट मिलने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्या निकालना है आपको, डिटरमाइन द सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र, कितना हीट ट्रांसफ़र होगा, सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र कितना होगा, इसकी एंथैल्पी फाइनल H2 माइनस H1। तो हमें H2 चाहिए और H1, मतलब इन्हीं जो एंट्री हो रही है एयर इंटर हो रही है उसकी उस पॉइंट पे एंथैल्पी, और जिस पॉइंट पे वो एग्जिट हो रही है उस पॉइंट की एंथैल्पी। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट दीज टू एंथैल्पी वेरी इजीली बिकॉज वी हैव टू मार्क द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 now। okay, so the enthalpy can calculate from here, and here this will be the enthalpy, यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगी। तो H1 की वैल्यू आई आपकी 19.3, H2 की वैल्यू आई 39.8 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, किलो जूल पर केजी होता है, ये पर केजी क्या है, ड्राई एयर। ओके, सेंसिबल हीटिंग H2 माइनस H1, सेंसिबल हीटिंग इज H2 माइनस H1, पुट द वैल्यूज, ओके, put the values and this is the kilojoule per kg of dry air। इसको अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें, और मास फ्लो रेट है ये, तो ये किस में है, kg पर सेकंड में, तो ये आ जाएगा किलोजूल, ये कैंसिल हो जाएगा किलोजूल पर सेकंड में। ओके, so if we multiply the mass flow rate H2 minus H1, so this will come in, put the value of MA की वैल्यू आपकी 100 है, H2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, H1 की फाइंड आउट कर ली, दिस इज 2050 किलो जूल पर सेकेंड इज द एंथैल्पी। ओके, सेंसिबल हीट ट्रांसफर, क्लियर। सो दिस इज द सेंसिबल हीट ट्रांसफर। नाउ द नेक्स्ट इज also determine the steam mass flow rate if the steam enters the saturated at 100 degree centigrade and condensate leave the 100 degree centigrade। मैंने बताया था आपको, ये आपकी हीटिंग कॉयल होती है, अभी डिस्कस किया था हमने। ये अपरेटस हुआ जिसमें एयर इंटर कर रही है, यहाँ से ऐसे आया, तो यहाँ से स्टीम इंटर हो रही है और यहाँ पर स्टीम एग्जिट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये TD1 पे इंटर हो रही है, या ये TD3 है, और ये TD2 पे एग्जिट हो रही है टेम्परेचर 2 पे। तो
क्या है आपका जो रेफ्रिजरेंट हम देखेंगे, रेफ्रिजरेंट जो इंटर हो रहा है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सॉरी रेफ्रिजरेंट से मतलब है स्टीम जो इंटर हो रही है, क्योंकि हीटिंग कॉइल है तो स्टीम इंटर होगी, स्टीम इंटर हो रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंटर हो रही है, और ये कंडेंस होके जो कंडेंसेट निकल रहा है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका एग्जिट हो रहा है। तो ये अपनी हीट दे रहा है, जितनी हीट ये ले रही है एयर, जितनी हीट ये एयर इस कॉइल से एब्जॉर्ब कर रही है, उतनी ही हीट ये कॉइल इस एयर को देगी। यानी कि हीट एब्जॉर्ब बाई द हीट रिजेक्टेड बाई द स्टीम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाई द एयर ड्राई एयर। हीट एब्जॉर्ब बाई द ड्राई एयर हम फाइंड आउट कर चुके हैं अभी, Q इज इक्वल टू MaH2 माइनस H1। ये हमने सेंसिबल हीट कर लिया, इतनी हीट एयर ने एब्जॉर्ब की है, तो जितनी हीट एयर ने एब्जॉर्ब की है उतनी हीट इस स्टीम ने रिजेक्ट की होगी। और इसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, 100 डिग्री टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेटेड है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेटेड है, तो हम Hg फाइंड आउट कर लें। Hg विल बी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द स्टीम टेबल। अब इसको हमें स्टीम टेबल से फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम स्टीम की बात कर रहे हैं, नॉट द एयर, नॉट द मॉइस्ट एयर, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टीम नाउ, क्योंकि ये कॉइल में क्या फ्लो हो रहा है, स्टीम फ्लो हो रहा है। तो ये 2676 किलो जूल पर केजी। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसनट्रेट है, मतलब फ्लूड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। तो लिक्विड की देखेंगे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे HF देखेंगे, Hg नहीं देखेंगे, उसकी वैल्यू आएगी 334.9 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, हीट रिजेक्टेड बाय द स्टीम, हीट अब्जॉर्ब बाय द एयर। तो हीट रिजेक्टेड बाय द स्टीम का फार्मूला क्या होगा, MC डेल्टा टी, एम उसका स्टीम का सपोज करो MS है, डेल्टा टी Hg माइनस HF, डेल्टा टी ना लगा के हम एंथैल्पी चेंज लगा दें डायरेक्ट, यहाँ की एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, Cp डेल्टा टी। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो रहा है, Hg से HF हो रहा है, और ये किसके बराबर होगा, हीट एब्जॉर्ब बाई द एयर, जो कॉइल से एयर पास हो रही थी, जो एयर का टेम्परेचर 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था, यानी कि MaH2 माइनस H1, ये हमें वैल्यू पता है, दैट इज़ द Q। ओके, तो ये Q हमें पता है, और ये हम लगा देंगे MS Hg माइनस HF इज इक्वल टू Q इज़ द सेंसिबल हीट, और यहाँ से हम MS फाइंड आउट कर लेंगे, Q अपॉन Hg माइनस HF, Q की वैल्यू और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज द 0.8756 किलो जूल पर सेकेंड। ओके, सो स्टूडेंट डू द more numericals based on this is very important, very easy topic, so you can solve the numerical related to this. Next video lecture we will discuss the more numerical based on this, and more other concept also. Thank you students.